morning, students. Today we are going to start the revision of chapter number 2. Firstly, we start the definitions, right? हमने रिवीजन में जो भी मैं रिवाइज करवाऊंगी उसको आपको अच्छे से पहले लर्न करना है. फिर जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगेंगे कि जो आपको लिख के रिवाइज करने चाहिए, जो आपको भूल रहे हो वो आपको लिखने हैं, राइट? फर्स्टली आपको अच्छे से लर्न करना है. लर्न करके अपनी मदर को या किसी को भी आपको उसको सुना देना है ताकि आपको पता चले आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. ओके, क्योंकि लिखोगे तो सारे चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाएंगे, तो इस बहुत टाइम जाएगा. इससे अच्छा है कि तुम उसको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स तुम्हें लगते हो वो उसको लिख के आप देखो, राइट? फर्स्ट इज स्टार्ट द डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, those organisms which we cannot see with naked eyes. Those organisms which we cannot see with naked eye are called microorganisms. Okay. Second is fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol by yeast. The process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called fermentation, right? Now next, choose the correct option. First, choose the correct option is which of the following disease is caused by the virus? Which of the following disease is caused by the virus? Polio, cholera, tuberculosis, typhoid. Answer is polio. Answer is polio. Now second one, what is called a fungi seen on moist or stale bread? What is called a fungi seen on moist or stale bread? Options are A. Mold, B. Yeast, C. Mushroom, and D. None of these. Answer is A. Mold. Answer is A. Mold. Now third one, which of the following is algae? Algae कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्गी? अमीबा, मशरूम, पैरामोशियम, डी क्लेमाइडोमोनास. आंसर इज क्लेमाइडोमोनास. नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेंसिलिन, टेट्रासाइलिन, एस्पिरिन. आंसर इज पेंसिलिन. नाउ फिफ्थ, हु इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स? किसने इन्वेंटेड करी थी, किसने खोजी थी? डॉक्टर एडवर्ड जेनर. डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की इन्वेंटेड करा था. डॉक्टर एडवर्ड जेनर. नाउ सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द spread of tuberculosis? Answer is A. Air is responsible for the spread of tuberculosis. Now seventh one, by whom is the disease cholera spread? अब जो cholera है वो किससे spread होता है? वाटर से. cholera किससे spread होगा? वाटर से. Now eighth one, which of the following is not a protozoan? protozoan जो नहीं है. which of the following is not a protozoan? पेंसिलियम जो है वो प्रोटोजोन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोन? पेंसिलियम इज नॉट अ प्रोटोजोन. नाउ नाइन्थ वन, ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक. नाउ 11th, carrier of malaria causing protozoan is female anopheles mosquito. जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है वो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन है. ओके. द नेक्स्ट 12th, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज हाउस फ्लाई. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज हाउस फ्लाई. Now next one, the bread or idli dough rises because of growth of yeast cell. The bread or idli dough rises because of growth of yeast
cells. Now 14th, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Now filling the blanks. First is microorganisms can be seen with the help of microscope. Microorganisms can be seen with the help of microscope. Blue-green algae fix nitrogen directly from air and enhances fertility of soil. Blue-green algae fix nitrogen directly from air and enhance fertility of soil. Now, third one. Alcohol is produced with the help of yeast. Alcohol is produced with the help of yeast. Fourth one. Cholera is spread by bacteria. Cholera is caused by bacteria. जो कलोरा है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है. नाउ फिफ्थ वन. चिकन पॉक्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस. चिकन पॉक्स disease is caused by virus. Sixth one. Malaria is caused by protozoan. Malaria is caused by protozoan. Chickenpox disease is caused by virus and malaria is caused by protozoan. During alcoholic fermentation process, dash gas is produced. Carbon dioxide gas is produced. Now, eighth one. फीमेल डैश मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. जो फीमेल एडीज होती है वो मॉस्किटो है जो कैरियर है डेंगू वायरस का. फीमेल एडीज. नाउ ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज मेसल्स डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. इट्स अ ट्रू. एज पर गिल्स इज अ प्रोटोजोन. एज पर गिल्स इज अ प्रोटोजोन. इट्स फॉल्स. Now third one. Microorganisms like amoeba may live in colonies. It's also false. Remains of animals and feces are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Remains of animal and feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. It's a true. Yeast is a multicellular fungus. Yeast is not a multicellular, so it's false. Yeast and mold are one type of algae. No, it's also a false. Okay. Now, answer the following question in one sentence. First is the name of any 5 viral diseases. Viral diseases कौन सी हैं? Viral diseases कौन सी होंगी हमारी? The viral diseases are common cold, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, हेपेटाइटिस, पोलियो. वायरल डिसीजेस तो भी आपको पता ही है. कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है. ये क्या है? वायरल डिसीजेस है. ओके. फिर फंगल डिसीजेस होती हैं. गिव द नेम ऑफ फंगल डिसीजेस. फंगल डिसीजेस में स्केबीज आता है, एक्जेमा आता है, रिंग वॉर्म है. ये क्या है? फंगल डिसीजेस है. द नेम ऑफ फंगल डिसीजेस आर स्केबीज, एक्जेमा, ringworm. फिर नेक्स्ट थर्ड वन इज फ्रॉम विच सर्टन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज अचीव. कहाँ से एंटीबायोटिक जो प्रोडक्शन है वो अचीव होती है? फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगई एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज अचीव. कुछ बैक्टीरिया और फंगई से. फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगई. नाउ हाउ डज फूड पॉइजनिंग अकर. फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ food spoiled by some microorganisms. Due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Now next, how do we know that food is spoiled? हमें कैसे पता चलता है फूड खराब हो गया है? Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and a color change. Spoiled food emits bad smell, bad taste and color change. From this we know that the food is spoiled. Spoiled food emits bad smell, has a bad taste and color change. From this we know that the food is spoiled. Now next one, sixth one.
Can microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? No, microorganisms cannot be seen with the naked eyes. They can be seen with the help of microscope. No, microorganisms cannot be seen with the naked eyes. They can be seen with the help of microscope. Okay. Next, what are the major groups of microorganisms? There are four major groups of microorganisms: bacteria, fungi, algae, protozoa. There are four major groups of microorganisms: bacteria, fungi, algae, and protozoa. Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. कौन कौन से हैं? राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर. बैक्टीरिया है राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर. और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है उनके नाम है एनेबेना एंड नॉस्टॉक. ब्लू ग्रीन एल्गे में एनेबेना एंड नॉस्टॉक है और बैक्टीरिया में राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के आगे नेम्स दिए हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या है फिक्स करते हैं. राइट. नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसके नेम्स थे. क्लियर. यहाँ पे हमने कवर अप करे हैं वन सेंटेंस कवर अप करें. उसके बाद हमने इस पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स. ओके. नाउ वी स्टार्ट 3-4 सेंटेंस. डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव? Microorganisms live under all types of environment ranging from the cold climate to hot spring and desert to marshy lands. हर जगह survive कर जाते हैं वो. They are also found inside the body of animals including humans. वहाँ पे भी survive करते हैं. Some microorganisms grown on other organisms while other exist freely. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Some can live alone while others may live in colonies. अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं. हर जगह सर्वाइव हो जाते हैं. फिर फूड वो जो कहाँ पे फाउंड होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी वो फाउंड हो जाते हैं. ओके. Now, second one, how is vaccine produced and how is it helpful to prevent the occurrence of disease? Vaccine is produced with the use of dead or weakened disease causing microorganisms under the observation of experts. Vaccine is produced with the use of dead or weakened disease causing microorganisms under the observation of experts. Dead or weakened microbes introduced as vaccine in a healthy body. ठीक है. Dead or weakened microbes introduced as vaccine in a healthy body. The body fights and kill them by producing suitable antibodies. ये आपको पता ही है कि ये जो वैक्सीन है इसमें माइक्रोब्स ही होते हैं डेड और वीकेंड. वो हमारी बॉडी में ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को किसी ने हमला कर दिया है. ठीक है. तो फिर अपने आप ही वो वैक्सीन जो एंटीबॉडी है उसके रिलेटेड वो प्रोड्यूस करने लग जाती है उससे फाइट करने के लिए. क्लियर. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है. फिर हम प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से. दिस इज़ हाउ वैक्सीन हेल्पफुल टू अस टू प्रिवेंट फ्रॉम द अकरेंस ऑफ डिसीज. ये नहीं है कि उसी टाइम ये ख़त्म हो जाएंगे. ये एंटीबॉडी जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहती हैं. और जब भी कोई माइक्रोब्स हमें हमला करता है, अटैक करता है, तो उससे वो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं. ओके. नाउ स्टेट एनी 4 यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया. यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? टू मेक मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़, पनीर. फिर nitrifying bacteria, atmospheric nitrogen in the soil and make rhizobium fix the soil fertile.
जो न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो फिक्स करते हैं सॉइल में नाइट्रोजन को, और राइजोबियम फिक्स अ सॉइल फर्टाइल, और जो राइजोबियम एग्जाम्पल दिया है वो क्या करता है, सॉइल फर्टाइल बनाता है, क्यों, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन सॉइल में। फिर दे डिकम्पोज सीवेज वेस्टेज एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, वो सीवेज वेस्टेज को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में उसको चेंज करते हैं टू प्रिवेंट वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, टू प्रिपेयर वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। क्लियर, ये यूज़फुल है हमारे बैक्टीरिया। ओके, यहाँ पे मैंने अपने 3-4 सेंटेंस भी कवर अप कर लिए हैं। आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। हम नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। इसके लिए इतना तुम्हें रिवाइज करना है, लर्न करके सुनाना है, और जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको लिख के देखना है। ओके।